Welcome to Ultimate Biology. Today we are going to discuss human health and disease. Why do we fall ill? The definition of health goes like this. Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. Health is a state of body when all the organs and systems are functioning properly and a perfect balance is maintained between the environment and the body. We call it as good health. These are the three factors which are responsible for this good health. One, that is a physical health. Second, that is a mental health. And third one, that is a social health. These are the three factors: physical, mental and social factor, on which the health of an individual is depend. See here, for example, the physical fitness of an individual is very good. एक जो पर्सन है उसका फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ही अच्छा है, पहलवान है. But the social factor which is there, social factor is a disturb. घर में बार बार झगड़े होते हैं, सोशल फैक्टर उनके ठीक नहीं है, तो वो हेल्दी पर्सन नहीं है. सेकंड, मेंटल फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकली फिट है, सोशली भी फिट है, घर में सब ठीक है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है, पागल है. Then also we call it as, we do not call that person is a healthy person. And third factor, that is a social factor, it is also very important. Physically that person is fit, mentally also that person is a fit, लेकिन सोशली वो फिट नहीं है, बार बार घर में झगड़े हैं और दूसरे कोई प्रॉब्लम से ट्रेस है. देन ऑल्सो दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी. मीन्स दीज आर द थ्री फैक्टर. विच वन? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. दीज आर थ्री फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which count the good health. So health defined as, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. Health is a state of body when all the organs and systems, that all the organs which are present in our body and the systems which are present in our body, that is a digestive system, circulatory system, excretory system, respiratory system, skeletal system, all these systems which are present in our body are functioning properly and a perfect balance is maintained between the environment and the body. Then only we call it as a healthy person, good health. Now factors which get affect this health. These are the factors which affect our health. One is the physical environmental factor. Physical environmental factor affect the health. जहाँ वो पर्सन रहता है वहाँ का physical environmental factor कैसा है वो depends करता है. These are physical environmental factors affect the health. Then social environmental factor also affect the health. Socially वो fit होना चाहिए. Then community health refers to public cleanliness is also affect the health. आप सब सही है, आपका घर साफ सुथरा है, घर में हर चीज सही है, लेकिन आपके पड़ोसी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे. उनके घर का कूड़ा लाके आपके घर के सामने अगर डाल रहे, उनके नालियों का पानी आपके आंगन में जो है अगर छोड़ रहे, देन दिस इशू अफेक्ट द हेल्थ. कम्युनिटी हेल्थ refers to a public cleanliness. Then balanced diet is also important. जो आपका खाना है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए. आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, विटामिन्स, देन मिनरल्स, ये सब प्रॉपरली आना चाहिए. यानी जो आपका जो डाइट है इट शुड बी बैलेंस. 8 दिन का जो खाना होता है
उनमें ये सब चीज़ें बारी बारी से आना चाहिए। बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड, अगर वो नहीं है तो देन हेल्थ गेट अफेक्ट। देन गुड इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अगर ये गुड इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है देन द हेल्थ गेट अफेक्ट। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल हाइजीन जो है हमारा होना चाहिए अच्छा, अगर ये नहीं है तो इट अफेक्ट योर हेल्थ। पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा हमको रहना है, हमारे नाखून काटना है, नाखून के अंदर जो मैला है जो होता है उसके अंदर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, दे ले देयर एग्स, वो खाने जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ ये पूरा मटेरियल बॉडी के अंदर चला जाता है, दैट एग गेट हैच इन योर बॉडी। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आल्सो एंटर्स थ्रू दीज, जो भी हमारे नाखून बढ़े उसके अंदर मैला अगर बैठा है, खाना खाने के पहले अगर प्रॉपरली अगर हाथ आप नहीं धोते हैं, दिस ऑल आर द पर्सनल हाइजीन। कपड़े धो के अगर आप लोग नहीं पहनते हैं लाइक दिस, ये पर्सनल हाइजीन में आता है, ये प्रॉपरली अगर आप लोग नहीं करते हो तो देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन योर बॉडी थ्रू वाटर, थ्रू फूड, थ्रू योर लाइक दिस हैबिट्स। Then healthy habits should be there. These all are the factor which affects your health. Then next we come to the disease. Disease means what? See here, dis means against, and ease means comfort. Means easy-going function which is present. The easy-going functions which are in our body, that easy-going function get disturbed. Then we call it as a disease. Which are the easygoing functions which are going on in our body? Respiratory system, digestive system, circulatory system, excretory system, skeletal system, muscular system. Then all these are systems which are present in our body. All these systems if work properly, सांस लेने में आपको तकलीफ नहीं है। Then circulatory system circulate the digested food material, oxygen, carbon dioxide properly. These are the functioning which takes place in our body. Excretory system जो है आपके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली फिल्टर करता है किडनी के अंदर, एंड यूरिन फॉर्मेशन इज देयर। Then the release of this urine from your body we call it as a excretion. This process, if it is proper, ये अगर प्रॉपर है, कंफर्ट है, तो डिसीज नहीं है। अगर ये सब हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स है ये प्रॉपरली अगर फंक्शंस नहीं करते हैं, ड्यू टू एनी मीन्स, ड्यू टू एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, देन डिसीज कॉजिंग फंगस, देन डिसीज कॉजिंग वायरस, और डिसीज कॉजिंग प्रोटोजोन्स, और डिसीज कॉजिंग दैट हेल्मिन्स आर देयर, देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर देयर, विटामिन डिफिशियंसीज आर देयर। कोई भी ऐसी जो फैक्टर्स है दैट फैक्टर अफेक्ट योर बॉडी सिस्टम, functioning of your body system, then the easygoing function of your body it get collapse. The easygoing function of your body of different system it get affected. We call it as a dis-ease. The easy is this one. The easygoing function of your body if get disturbed, means the comfort which is there going on in your body, against that comfort if any organism or any factor play important role, and the easygoing function of your body if get disturbed we call it as disease. What is it? Disease. Any condition which prevent the proper functioning of the cell, tissues, organs of the body and impair the health is called disease. According to the World Health Organization, who is a disease-free person? Such a person who is mentally, physically, socially, economically fit. That persons are the healthy persons and disease-free persons. Disease means any condition which prevent the proper functioning of the cells, tissue, organs of the body and impair the health is called disease. Diseases are of like these two types. Some diseases are the acute disease and some diseases are the chronic disease. What is acute disease? Those diseases occur very rapidly but last for only short period. ऐसी बीमारियां जो जल्दी उत्पन्न होती है
और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमको होती है और शॉर्ट पीरियड में ही वो ठीक हो जाती है। विद इन 4 days, 5 days, 8 days वो डिसीज़ जो है मेडिसिन लेने से या अपने आप जो है ठीक हो जाती है। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर डिसीज़ हमारे शरीर में होती है, दैट डिसीज़ वी कॉल इट एज एक्यूट डिसीज़। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, इट इज़ अ एक्यूट डिसीज़, कुछ दिन के लिए होता है कॉमन कोल्ड, बाद में हम ठीक हो जाते, अपने आप ठीक हो जाते। दैट डिसीज़ वी कॉल इट एज अ एक्यूट डिसीज़। लाइक दिस सो मेनी डिसीजेस आर देयर, कॉमन कोल्ड, कफ है, like this we will see later. Then chronic disease. Chronic disease means which disease? This disease last for a long period. लंबे समय के लिए ये बीमारी जो है हमारे शरीर में होती है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, और कंप्लीट दैट बॉडी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा ध्यान उस बीमारी की तरफ हमारा होता है, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, कुछ करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। सम ऑर्गन्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू दैट दिस डिसीज। सच डिसीज वी कॉल इट एज क्रोनिक डिसीज। व्हाट इज इट? क्रोनिक डिसीज। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है, दैट इज अ क्रोनिक डिसीज, इट इज अ प्रोलॉन्ग डिसीज, काफ़ी दिन तक चलती है, 6 महीने, 8 महीने, लाइक दिस। और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इससे अफेक्ट होते हैं, लंग्स हमारी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। दैट इज क्रोनिक डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस। सेकंड कैंसर, प्रोलॉन्ग चलता है, शरीर के अंदर होता है। कैंसर इज नथिंग बट दैट इज अनकंट्रोल एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल, वी कॉल इट एज अ कैंसर। हमारे शरीर के अंदर गांठ बनती है, ऐसे कैंसरस ग्रोथ होती है। हम डिटेल जब कैंसर का टॉपिक आएगा तब हम लेंगे। दैट इज अ कैंसर, इट इज अ क्रोनिक डिसीज। एंड नेक्स्ट दैट इज एलिफेंटाइसिस, एलिफेंट हाथी, एलिफेंटाइसिस, हाथी पाय रोग, हाथी के जैसे लिम्ब जो है, हाथी के ऐसे फूल जाते ऐसे लिम्ब, वी कॉल इट एज एलिफेंटाइसिस। कॉज ड्यू टू द पॉजिटिव एजेंट, वी कॉल इट एज वाउकेरिया ब्रोंकोफ्टी। हम डिटेल्स में जब वर्म्स का टॉपिक आएगा तब हम ये डिटेल्स में पढ़ेंगे एलिफेंटाइसिस। बट दिस एलिफेंटाइसिस इज अ क्रोनिक डिसीज, प्रोलॉन्ग डिसीज। इसकी जो ट्रीटमेंट है काफ़ी दिन तक चलती है। हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग इसमें अफेक्ट होता है। अगर हाथ अगर इन्फेक्ट हो गया तो हाथ अफेक्ट होता है, पतला हो जाता है। पैर अगर अफेक्ट हो गया तो पैर अगर इन्फेक्ट हो गया तो पैर अफेक्ट होता है, पहले जैसा नॉर्मल नहीं दिखता। दैट इज chronic disease, elephantiasis. So disease like these are the two types. One is the acute disease, second one is the chronic disease. Acute disease occur very rapidly but last for only short period, and chronic disease, these are disease last for a long period and affect your body organs. So like this disease get differentiated into two types, acute and chronic disease. Now these are the common diseases. ये कॉमन डिसीजेस है जिससे हम लोग बीमार गिरते हैं। इनमें से कुछ डिसीज जो है वो घातक डिसीज है। दैट इज डिसीज वी कॉल इट एज अ क्रोनिक डिसीज एंड इट लीड्स इनटू डेथ आल्सो। लेकिन ये जनरल जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, उनमें ये बीमारियाँ होती है, दिखती है ज़्यादा लोगों में, यानी हमको ये बीमारियाँ जो है दिखती है, इसलिए इसको हमने कॉमन डिसीजेस में इसको रखा है। These are the common diseases. One is the bacterial disease, second one is the viral disease, next is the protozoal disease, next fungal disease, and next one is the helminth disease. Now see here, हम लोग जो बीमार होते हैं, it is due to microorganism. They are microscopic in nature. कुछ ऑर्गेनिज्म आंखों से दिखते भी हैं। So माइक्रोस्कोप यानी हम जो बीमार गिरते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, then protozoon, then helminth. Some are the sexually transmitted disease, some are the genetic disorder disease. कुछ जो बीमारियां होती है it is due to the deficiency vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin like these deficiency diseases are there. तो यही है common diseases caused due to bacteria, virus, protozoos, fungus, helminth, and some diseases are there like this.
Bacterial disease, these are the bacterial disease which are the common. One is the pulmonary tuberculosis, second one that is a diphtheria, next one that is a cholera, next one that is a anthrax, next one leprosy, typhoid, pneumonia, tetanus, plague, gonorrhea and syphilis. These all diseases takes place due to the disease causing organism, we call it as a bacteria. These all are the bacterial disease. बैक्टीरिया से होने वाली ये कॉमन डिसीजेस है. वायरल डिसीजेस, वायरल कॉमन डिसीजेस आर कॉमन कोल्ड, ये वायरस से होता है. डेंगू, देन चिकन पॉक्स, देन स्मॉल पॉक्स, देन दिस वन पोलियोमाइलिटीज, देन रेबीज, देन मीजल्स, देन इन्फ्लुएंजा, then hepatitis B and this one AIDS. These all are the diseases which caused due to the virus. These all are the viral diseases caused due to the viral infection. Next one, these all are the disease which takes place due to these protozoans. Protozoan, microscopic unicellular organism. Amoebic dysentery. Next malaria. Next kala azar. Next one, that is the sleeping sickness. Next one leukorrhea. Next one, this one gardiasis. These all diseases caused due to the protozoans, unicellular organisms. Then fungal diseases are ringworm. These are the common diseases. Ringworm. Second, athlete's foot diseases. These are the fungal diseases. इससे भी ज़्यादा diseases है, लेकिन ये common है इसलिए हमने लिया है. Next, helminth diseases are there. Helminth, worm, zat, kurmi, helminth, ascariasis, and second one, that is this one we call it as elephantiasis. These are the helminth disease. और भी है, हम जब ये टॉपिक आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे. आज इस वीडियो में हम बैक्टीरियल जो डिसीजेस है उसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं. ये वीडियो में सिर्फ बैक्टीरियल डिसीज को हम देखेंगे, जो कॉमन बैक्टीरियल डिसीजेस है उसके बारे में जानकारी हम लेंगे. नाउ सी हियर, these are the bacterial diseases: pulmonary tuberculosis, diphtheria, cholera, anthrax, leprosy, typhoid, pneumonia, tetanus, plague, gonorrhea and syphilis. Let's see these all diseases one by one. इनमें से कुछ जो डिसीज है हम उनको डिटेल्स में लेंगे और कुछ डिसीज जो है उसको लास्ट में शॉर्ट में उसको हम लेंगे इस वीडियो में. We'll see these tuberculosis somewhat in a detailed sense. Bacterial disease, this one pulmonary tuberculosis. सिर्फ एक ही टाइप का टीबी होता है ऐसा नहीं है. There are some type of what that tuberculosis, but we are going to see these are pulmonary tuberculosis in a somewhat detail. This one is the bacteria which is responsible for this pulmonary tuberculosis. ये जो pulmonary tuberculosis है, लंग्स से जो जुड़ा हुआ टीबी है, उसके लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है. दैट बैक्टीरिया वी कॉल इट एज Mycobacterium tuberculei. This one is the causative agent. Due to this disease that takes place, that is a TB. Mycobacterium tuberculei. See, the bacteria, they are like this. Now these bacteria, they infect our lungs. This one is the X-ray of that infected persons. और ये बैक्टीरिया लंग्स के अंदर ऐसे टाइप की कॉलोनीज जो है फॉर्म करते हैं, जो एक्सरे में स्पॉट, वाइट स्पॉट्स के जरिए हमको दिखती है. अब ये ट्यूबरकुलोसिस ही है या और कोई दूसरे पैचेस है, निमोनिया के पैचेस है, उसके लिए टेस्ट करना जरूरी होता है. एकदम से नहीं कहा जा सकता कि वो टीबी हो सकती है. इन केस ऑफ निमोनिया ऑल्सो सम टाइप ऑफ दैट सिम्टम्स आर देयर. थोड़े सेम सिम्टम जो है पहले पेशेंट में होते हैं. पेशेंट खांसता है, पेशेंट के लंग्स में जो है दैट म्यूकस फ्लूइड फॉर्मेशन इज देयर, दैट बैक्टीरियल कॉलोनीज गेट सेट अप इन दैट लंग्स. सीवर इन्फेक्शन, व्हेन द सीवर इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, देन दैट पेशेंट ये कंटिन्यू जो है खांसता है, कंटिन्यूली खांसते रहता है उसमें.
because in the body these bacteria are present, and due to these bacteria that trachea which get differentiated into bronchi, उस bronchus में swelling आना शुरू होता है, and the size of that bronchi get reduced, bronchitis takes place in that patient. Then by the X-ray we can detect the spots which are present in the lungs. Chest X-ray can show damage in your lungs. Might need further test to prove you have TB. One test, that is a sputum test, and second test, that is a culture test. Sputum test जो है वो पेशेंट जो होता है वो पेशेंट का स्पुटम, यहाँ होता है स्पुटम like this, that sputum which comes outside, that sputum take as a sample, और उस स्पुटम को स्लाइड पर लगाया जाता है, और then the TB germs positive if present in the sputum, उसको जो है उस स्लाइड को उस स्टेन में रखा जाता है. उसके बाद में वो पर्पल कलर के बैक्टीरिया उसमें दिखते हैं या नहीं है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, TB gram positive bacteria is present in the sputum, you have tuberculosis of the lungs or throat, that is a pulmonary TB or pulmonary, that is a tuberculosis. These sputum tests help doctor to understand how infectious you may be. ये डॉक्टर को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ द इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, यानी कितना स्प्रेड हुआ है आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, दैट बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट और नॉट, दैट इज अ स्पुटम टेस्ट. नेक्स्ट दैट इज अ बायोप्सी. ये अलग अलग टेस्ट को करना होता है, देन इट गेट कंफर्म दैट दैट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, टीबी बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. नेक्स्ट इज दैट इज अ बायोप्सी. Biopsy, small sample of tissue or fluid taken from the area where the TB is thought to be. If TB not in your lungs or the throat, यानी आपके शरीर के लंग्स और थ्रोट में टीबी नहीं है और कहीं दूसरी जगह जो है उसके बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया उसने इन्फेक्ट किया है, तो उस ऑर्गन में से छोटा टुकड़ा जो है वो निकाला जाता है टिश्यू का, एंड देन that a small piece of that tissue get analyzed, उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, we call it as a biopsy. What is it? Biopsy. Bacterial culture or this culture plate method also we can find out these tuberculosis bacteria. These bacterial culture or this cultural plate method carried out in the pathology lab, carried out to the sample to culture on agar-agar gel in a petri dish. agar-agar gel ये समंदर में मिलने वाला एक वीड है, उससे ये agar-agar जेल, जेली मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है एंड पाउडरी फॉर्म में ये मिलता है, और उसको डिस्टिल वाटर में डाल के थोड़ा गर्म अगर हम करेंगे तो वो जो मटेरियल है जेली मटेरियल हम पेट्री डिश में लेंगे, कांच की डिश है उसमें लेंगे. इट इज़ अ फूड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया उस एकदम इजीली वो डिवाइड होते हैं ये agar-agar जेल पे. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट इन नेचर, जैसे मोम पिघलता है फिर ट्रांसपेरेंट दिखता है वैसे ही होता है ये, और फिर ये agar-agar जेल के ऊपर हम धूप से जो है यहाँ पे बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, उस पेशेंट का जो भी हमने सैंपल लिया है उससे इनोकुलेट कर सकते हैं. और प्लेट के ऊपर इनोकुलेट करने के बाद दिस बैक्टीरिया टेक मोर टाइम टू डिवाइड, टू रिप्रोड्यूस. 8 वीक तक लगते हैं इसमें यानी पूरी कॉलोनी सेटअप होने के लिए. इट टेक अ प्रोलॉन्ग टाइम, और उसके बाद पता लगता है कि ये बैक्टीरिया टीबी के बैक्टीरिया है. और एक बार कॉलोनी पूरी सेटअप होने के बाद फिर हम मार्केट में जो भी अलग अलग टाइप की मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है रिलेटेड टू द टीबी, वो मेडिसिन को ऐसे जो गोल प्लेट है उसके ऊपर हम लगाते हैं ऐसे वो टैबलेट्स को, और ये पूरे कॉलोनी के ऊपर हम डालते हैं, और डालने के बाद में किस टैबलेट से ज़्यादा बैक्टीरिया मरते हैं ये फाइंड आउट किया जाता है, वही जो है एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती है. लाइक दिस in the laboratory these all test is going on, whether your TB is resistant to any antibiotic also detected by this cultural plate method. Then treat by combinations of drug that cure that particular patient, ये भी find out किया जाता है.
then culture grows slowly. It may take up to 8 weeks to get some of the result. 8 वीक तक जो है ये कल्चर्स को लगते हैं. Then skin test, that is a Montauk test is there. एक निडल होती है, छोटी ऐसी बारीक निडल होती है, उससे ये जो 4 आर्म है इसके स्किन के नीचे उस निडल को पिक किया जाता है और थोड़ा स्किन ऊपर उठा के ये जो है वी कॉल इट एज अ ट्यूबरक्यूलिन, उसमें थोड़ा इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पे. और इंजेक्ट करने के बाद में ये इफ द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट और द पर्सन, उसके शरीर में अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या पास्ट में कभी वो इन्फेक्ट हुआ है, तो ये जो ट्यूबरक्यूलिन है ये कुछ दिन के बाद में यहाँ पे ये थोड़ा अपराइज हो जाता है ये स्किन और बड़ा हो जाता है ये पैच, पर्पल कलर का, रेड कलर का दिखने लगता है, थोड़ा इचिंग भी वहाँ पे होता है. इट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ दिस ट्यूबरक्लोसिस. If you have been exposed to TB bacteria in the past, your skin can become raised, थोड़ी ऊपर आती है, and it becomes a red, which can means a positive result. You can also get a positive result if you have had the TB vaccine called the BCG. BCG वैक्सीन लेने के बावजूद भी कभी कभी कुछ पेशेंट में, कुछ पर्सन में TB के लक्षण जो है पाए गए हैं. इसलिए टेस्ट करना जो है, ये सब टेस्ट करना जरूरी होता है. Then IgRA test, that is a interferon gamma release assay, that is a IgRA, is a blood test that can diagnose latent TB by looking at the immune system cells in the blood. Also need a chest X-ray and assessment by the doctor. ये सब करने के बाद में कंफर्म हो जाता है कि उस पर्सन को TB हुआ है और उसके बाद में ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट होती है. The name of the causative agent of that TB is a Mycobacterium, this one tuberculin. Then mode of spread is airborne or it also spread by this droplet infection. छींकने की वजह से जो droplets निकलते हैं वो हल्के होते हैं and it gets spread from one place to another by that wind or by the air and the person gets infected. From one person to another, the disease gets transmitted. This one is the chronic disease. This disease is an infectious disease because it infects another persons. Then it is not a congenital disease, it is a communicable disease. In the community also this disease gets spread. And symptoms are so many, cough, weight loss, so many like these symptoms are fever and all this. Then we will see next bacterial disease, that is a pneumonia. Pneumonia, it caused due to bacteria, it caused due to virus. There are some fungus also which is responsible for this pneumonia. निमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया से ही होता है ऐसा नहीं है, ये वायरस और फंगस से भी होता है. These all are the causative agents. Diplococcus pneumoniae, this one, that is a bacteria. Streptococcus pneumoniae, that is also that bacteria. This is a mycoplasma, this is a pneumoniae. Then Haemophilus, this is a influenza, viral. Then this is a Legionella, this is a pneumophila. This one fungus, that is a pneumocystic Jurovaceae. Then Cryptococcus, this one species. Then Histoplasmosis species. Like these pneumonia caused by different, means the causative agents of pneumonia are different like this. Generally pneumonia caused due to this Diplococcus pneumoniae and this one, that is a Streptococcus pneumoniae. These are pneumonia infect our respiratory system. It is a respiratory disorder. Generally it is a respiratory disorder. Lungs get infected like this. ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के नीचे के, उनमें निमोनिया ज़्यादातर होता है. इसका मतलब जो एडल्ट्स है, बड़े हैं, उनमें निमोनिया नहीं होता ऐसा नहीं है, उनमें भी होता है. एंड निमोनिया इट इज इन सीवियर केसेस इट लीड्स टू डेथ. इसमें मृत्यु भी हो सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली गई, तो इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो. स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी जो है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, इसके 2 स्ट्रेन है. वन इज द रफ स्ट्रेन एंड सेकंड वन वी कॉल इट एज अ स्मूथ स्ट्रेन. रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, ज़्यादा घातक नहीं है, बट स्मूथ स्ट्रेन इट इज वायरुलेंट. इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो बिकॉज दीज बैक्टीरिया secrete release mucus polysaccharide which is virulent in nature. यह हमारे शरीर के लिए जहरी है.
that bacteria form their colonies in our lungs. ये म्यूकस को रिलीज करते हैं और वो म्यूकस पानी जो है चिपचिपा पानी हमारे लंग्स में एल्वेओलार सैक में जो स्पेस होती है उससे भर जाती है. In the lungs like these a sac are there. यानी ये जो पोर्शन है दिस वन जो उंगली को लगता है दिस वन वी कॉल इट एज अ ट्रकिया. Leads into two we call it as a bronchus. And it leads into primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, alveolar duct. Then alveolar that alveoli is there. Then that alveolar sac are present. ऐसे alveolar sac होते हैं transparent like this unicell structure and like this sac are there. Numerous, uncountable like this alveolar sac they are present in our both lungs. और ये alveolar sac में से there is a exchange of gases takes place. ये जो मैंने अंदर सांस ली है ऑक्सीजन लिया है that oxygen get diffused into the blood through these alveolar sac. इस alveolar sac को blood capillaries attach होती है और blood में जो है ऑक्सीजन blood के अंदर जो RBCs present है that RBCs carry oxygen from these places. तो these alveolar sac here the exchange of gases takes place. यही alveolar sac में अगर चिपचिपा पानी म्यूकस अगर भर गया तो सांस लेने में हमको तकलीफ होती है. दिस इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर निमोनिया. और छोटे बच्चे जो है उनके लंग्स जो है आधे लंग्स ये म्यूकस से पानी से भर जाते हैं और सीवर होने के बाद में उनके नाखून जो है छोटे बच्चे के वो ब्लूइश कलर के दिखने लगते हैं. ऐसे ग्रे कलर से ब्लूइश कलर के दिखने लगते हैं. मीन्स इट इज़ अ वेरी सीवर निमोनिया. ऐसे वक्त ऐसे जो बच्चे हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है. इसको निमोनिया को हल्के में हमको नहीं लेना है. एडल्ट्स हो या छोटे बच्चे हो निमोनिया को हल्के में नहीं लेना है बिकॉज देर आर सम स्ट्रेन विच आर वायरुलेंट एंड इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो. इसलिए हमको निमोनिया को हल्के में नहीं लेना है. अब यहाँ निमोनिया होने के बाद लाइक दीज पैचेस आते हैं. ये सब जो है म्यूकस पैचेस हैं. ऐसे म्यूकस भर जाता है हमारे बॉडी के अंदर और ऐसे टाइप के एक्सरे जो है आते हैं. लेकिन देयर इज अ कंफ्यूजन क्या ये निमोनिया है या टीबी के पैचेस है. उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करना जो है ज़रूरी होता है. टीबी और निमोनिया में कंफ्यूजन होता है. नाउ सी हियर बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe are responsible for the disease pneumonia in human which infect the alveoli air-filled sac of the lungs. That alveolar sac will get filled with that mucus. Then as a result of the infection the alveoli get filled with the fluid leading to severe problem in the respiration. सांस हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सब म्यूकस से ब्लॉक हो जाते. इसके अलावा द ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं हम वो भी इस बीमारी में होता है. Swelling of that respiratory that tract bronchi we call it as a bronchitis. यानी उसकी जो लुमेन है वो लुमेन खोखली वो कम हो जाती है और फिर सांस लेने में हमको उसमें तकलीफ होती है. In severe cases the lip and finger nails may turn grey to bluish. ग्रे से ब्लूइश कलर के जो नेल्स है उसके लीप जो है उस बच्चे के दिखने लगते हैं. इन केस ऑफ सीवर केसेस. Then in these pneumonia same symptoms are there. बुखार आता है, then chills ठंड लगती है, कफ होता है, headache and that all are the common symptoms. The healthy persons acquired the infection by inhaling the droplets, then the aerosol released by infected persons or even by sharing glasses and utensils. Droplets और aerosol से ये बीमारी जो है फैलती है. कोई छींकता है तो उसके छींक में जो बाहर निकलता है उसकी छींक में से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो हल्के होते हैं और एयर दे ब्लो दीज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दूसरे पर्सन ने उसको अगर इनहेल कर लिया दैट पर्सन आल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय शेयरिंग द ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स ऑफ दैट इन्फेक्टेड पर्सन is also a more of that transmission of these bacteria or that causative agents of this pneumonia. Pneumonia is an infection by in one or both lungs causes by bacteria, viruses and fungi. Cause it. यानी एक इसका पॉजिटिव एजेंट नहीं है. कुछ वायरसेस है, कुछ बैक्टीरिया है और कुछ निमोनिया है जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड इट लीड्स इनटू द डिसीज वी कॉल इट एज अ निमोनिया. ये इन्फेक्टेड लंग्स है. निमोनिया होने के बाद ज़्यादा सीवर अगर निमोनिया होता है तो ऐसे हमारे लंग्स अंदर से हो जाते हैं. इनके सब सीवर केसेस. ये प्लेट मेथड है, दैट इज अ कल्चर प्लेट मेथड. उसमें निमोनिया
जो छोटे बच्चे हैं उसकी जो वोमिटिंग अगर बाहर आती है, उसके वोमिटिंग में से जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, वो जो सैंपल हमने लिया है या कोई एडल्ट पर्सन है उसकी बॉडी में से जो भी हमने सैंपल लिए हैं उस सैंपल को ऐसे प्लेटिंग किया जाता है, ऐसे इनोकुलेट किया जाता है। और इनोकुलेट करने के बाद में दीज बैक्टीरिया दे ग्रो इन दैट कल्चरल दैट प्लेट, और उस प्लेट में ग्रो होने के बाद में फिर अलग अलग प्लेटिंग मेथड्स और उससे जो है कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट्स को, कितना सीवर वो हुआ है, उसकी स्ट्रेन कौन सी है, इट इज़ अ बैक्टीरिया और इट इज़ अ वायरस और इट इज़ अ फंगस जिससे निमोनिया हुआ है, वो डिटेक्ट किया जाता है इन द पैथोलॉजी लैब। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दैट निमोनिया। नेम ऑफ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया, दैट इज डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और बहुत सारे। नेम मोड ऑफ द स्प्रेड इज द एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इससे ये फैलता है। इट इज अ एक्यूट डिसीज, इट इज अ इन्फेक्शियस डिसीज, then it is not a congenital disease, it is a communicable disease transmitted in the community and the symptoms are the common, उसको बुखार आता है, हेडेक होता है, उसमें भूख नहीं लगती, then weight loss होता है, like these all are the common symptoms which are takes place in case of the disease, we call it as a pneumonia. Next we will see next bacterial disease, that is a typhoid. This one is the typhoid bacteria. The causative agent of a typhoid is a Salmonella typhi. Salmonella typhi ये इंग्लैंड में एक मैकमेरी मिलॉन, उसके शरीर में जो है ये बैक्टीरिया की नई स्ट्रेन बनी और वहाँ से ये बीमारी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फैली है, टाइफाइड। Salmonella typhi is a pathogenic bacteria. Pathogen means a disease causing that organism. Pathogen जिससे बीमारी होती है, is a pathogenic bacteria which causes a typhoid fever in human beings. This one is the bacteria due to which this typhoid takes place. This pathogen generally enters the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. ये पैथोजन जो है ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर जो है इससे हमारे शरीर में आता है या कंटेमिनेटेड जो फूड है उसमें से ये बीमारी जो है फैलती है, ये बैक्टीरिया जो है ये फैलता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन लाइक दिस। सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इतना फीवर इसमें होता है। वीकनेस इसमें ज़्यादा आता है। स्टमक पेन इसमें होता है। कॉन्स्टिपेशन बार बार इसमें होता है। देन हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख इसमें नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती इसमें। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, वी कॉल इट एज टाइफाइड। बुखार बहुत ज़्यादा इसमें आता है। समटाइम्स इफ इट इज अ सीवर देन इंटेस्टिनल परफोरेशन इज देयर एंड इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो, सीवर केसेस में। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय वन टेस्ट, दैट टेस्ट वी कॉल इट एज अ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में प्लेट होती है, उस प्लेट में सर्कल्स होते हैं, कंपनी के वायर होते हैं, जो पेशेंट है उनका 5 ml ब्लड यहाँ से लेना होता है। देन दैट ब्लड गेट कोएगुलेट, ऊपर का सीरम यहाँ लेना है, जो कंपनी के जो वायल है उसमें से यहाँ हमको यहाँ पे वो लिक्विड यहाँ पे लेना है, देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर क्लम्प होता है तो पॉजिटिव है, नहीं होता है तो लाइक दिस टेस्ट इज देयर, या डायरेक्ट ब्लड लेके देखना है क्लम्प होता नहीं होता है, लाइक दिस दैट विडाल टेस्ट इज देयर। अगर वो कंफर्म हो जाती है, पॉजिटिव आती है, तो देन द टाइफाइड डिसीज विल गेट कंफर्म कॉज ड्यू टू दिस बैक्टीरिया, वी कॉल इट एज द साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी पूरे वर्ल्ड में एक ही स्ट्रेन है, साल्मोनेला टाइफी, और इसलिए उसके ऊपर जो है मेडिसिन निकालना बहुत इजी हुआ है। सिफ्रान करके एक मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर इसमें यूज़ होती है एंड सो मेनी लाइक दिस मेडिसिन आर देयर जो इसके ऊपर हम लोग लेते हैं। टाइफाइड, ए क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ए मैरी मेलॉन, निक नेम टाइफाइड मेरी, ये है दैट इज अ टाइफाइड मेरी। जो काम वाली बाई होती है इंग्लैंड में, एक जो इलाका है उसमें एक घर से दूसरे घर में काम करने के लिए जो काम वाली बाई है वो जाती है, ये घर में फूड प्रिपेयर किया, फिर होने के बाद दूसरे घर में जाके फूड प्रिपेयर किया, लाइक दिस। इनके शरीर में ये बैक्टीरिया जो है इन्होंने घर बनाया, यहाँ इनके शरीर में एक साल्मोनेला टाइफी की नई स्ट्रेन बन गई, और उसके बाद में वो जिस जिस घर में गई उस घर के जो लोग हैं वो बीमार गिरते गए।
फिर बाद में वहाँ जो रिसर्च टीम है उनको पता लगा, पहले तो उसमें एक घर में बीमारी आई, 2 घर में आई, 3 घर में आई, उसमें कुछ डेथ हुई तो पता नहीं लगा। लेकिन जैसे ही रिसर्च करते गए तो एक कॉमन बात उनके ध्यान में आई कि ये एक लेडी है, ये सबके घरों में काम करती है। उसके बॉडी के सैंपल जब लिए तो पता लगा कि इसके शरीर में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट बैक्टीरिया वी कॉल इट एज अ साल्मोनेला टाइफी। उसका लीवर है, लीवर के अंदर जो गॉल ब्लैडर है उसमें यह साल्मोनेला टाइफी की स्ट्रेन पनप गई थी। तो उसके बॉडी को ऑपरेट करना पड़ा, गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा, और इसकी ओरिजिन जो है साल्मोनेला टाइफी की डिस्ट्रॉय की गई है इन द इंग्लैंड। यह है हॉस्पिटल में ये बीमारी है, दैट इज द टाइफाइड बीमारी। यहाँ से ये बीमारी जो है पूरे वर्ल्ड में फैली है। ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई और उसमें उसकी ओरिजिन जो है उसकी दैट साल्मोनेला टाइफी की उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने रजामंदी दी, और आगे चल के हम इसको पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हम अब आगे चल के कर सकते हैं इस बीमारी को। सो ए क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मेरी मेलॉन nickname, that is the typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread from one person to another person like this in the community. Next here, plague. The causative agent of this plague is this Yersinia pestis. This one we call it as a rat flea, oriental rat fly, Xenopsilla, this is Chopsis, this one is responsible to carry these positive agent from one person to another. ये rat fly है, यानी जो चूहे हैं उनके वार्म ब्लडेड एनिमल चूहे, उनके जो शरीर के जो बाल है उसमें ये जो फ्लाई है ये पाई जाती है। और ये जब जो ऊंट है उसमें से जब सक करती है उसका फुल मटेरियल, तो उसका पूरा सर उसमें अंदर डालती है और सक करती है। तो जब सक करते हैं अलॉन्ग दैट द पॉजिटिव एजेंट आल्सो एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। और ये फिर जो चूहे हैं, चूहे के ऊपर ये वहाँ पे उनके शरीर के ऊपर रहते हैं, और चूहे के ऊपर रहने के बाद चूहे को जो है ये बीमारी हो जाती है, वो कॉल इट एज अ प्लेग। और चूहे मरने के बाद में देन दैट डिसीज गेट स्प्रेड इनटू द कम्युनिटी ड्यू टू दिस फ्लाई। और फिर एक दौर ऐसा था उसमें ये जो प्लेग है उससे गांव जो है वो वहाँ पे डेथ हुई है, पूरे गांव के गांव उजड़ गए हैं। ऐसे जो पहले के जो किस्से हैं वो आज भी है। ये एक काफ़ी खतरनाक बीमारी पहले हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये बीमारी जो है फैल चुकी है। रीज़न जो है चाइना से ही ये बीमारी जो है फैली है करके उसके कुछ प्रमाण जो है मिले हैं, और इसके कई दौर चले हैं। यानी एक बार प्लेग आया, फिर उसके बाद दूसरा दौर चला प्लेग का, फिर तीसरा दौर चला, लाइक दिस। एंड फॉर द प्लेग द पॉजिटिव एजेंट इज दिस वन, दैट इज Yersinia, this one pestis. This one is the organism rat. इनके शरीर में ये जो है यहाँ इट इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल ड्यू टू व्हिच दे कम्स हियर, और यहाँ से देन व्हेन दे फ्लाई टू द ह्यूमंस, ह्यूमन में भी ये बीमारी जो है ट्रांसमिट होती है। ह्यूमन में ट्रांसमिट होने के बाद ये जो लिम्फ नोड है बॉडी के अंदर के, दैट लिम्फ नोड इट गेट स्वेल। यहाँ के लिम्फ नोड जो है स्वेल होते हैं। लिम्फ नोड स्वेल होने के बाद कभी कभी फूट भी जाते हैं लाइक दिस, and it leads to the death also. The immune system get completely collapsed and the person leads to the death. Plague, the causative agent is this Yersinia, this pestis. Symptoms: flu-like, swollen and painful lymph node. Sometimes that lymph node it get a breakdown. जो हमारे जो पेल्विक रीजन है यहाँ पे भी थाई रीजन में ऐसे जो है लिम्फ नोड जो है स्वेल हो जाते हैं वहाँ पे, ये इसके सिम्टम्स हैं। देन डायग्नोसिस: बैक्टीरिया फाउंड इन ब्लड, देन इन द स्पूटम एंड फ्लूइड ऑफ द लिम्फ नोड गेट डिटेक्टेड, कल्चर, एंड देन द पर्टिकुलर मेडिसिन्स गेट प्रिस्क्राइब्ड। दैट द मेडिसिन्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, देन टेट्रासाइक्लिन काफ़ी चली है उस पीरियड में, और जिससे जो है प्लेग के मरीज जो है ठीक किए गए हैं। आज ये बीमारी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो चुकी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर नज़र में रखता है। नेक्स्ट दैट इज द एंथ्रेक्स।
The causative agent of this anthrax is this Bacillus anthracis. This one bacteria, anthrax bacteria. This anthrax bacteria infect the person और एंथ्रेक्स होने के बाद में लाइक these lesions are there. ऐसे टाइप के lesions उसमें आते हैं. Sometimes it leads into the death also. Like these that bacteria get cultured into the laboratory. That is to confirm the anthrax. Causative agent, that is the Bacillus anthracis. 4 forms: skin, lungs, intestine, and due to the injection. ये जो है एंथ्रेक्स जो है फैलता है. By skin contact, then lungs also get infected, the intestine also get infected, then by the injection also, by injecting some like the infected that rod like this, these anthrax bacteria can enter inside our body and the anthrax formation takes place. The skin forms present with a small blister with a surrounding swelling that often turns into a painless ulcer with a black center. ये उसके symptoms हैं. Then anthrax is spread by contact with the bacterium spores, which often appear in infected animal products. Contact is by breathing, eating, or through an area of broken skin. These diseases get spread. Diagnosis can be confirmed by finding antibodies or the toxins in the blood or by culturing of a sample from the infected site. उसके बाद में ये कंफर्म होता है कि that person get particularly infected by the anthrax. Next, that is a cholera caused by these bacteria. ऐसे जो गंदे पानी है इसमें ज़्यादातर ये पनपते हैं और कम्युनिटी में जो है स्प्रेड होता है. These all are the symptoms. The patient जो है डिहाइड्रेट हो जाता है like this, and in the severe cases that death also takes place. Cholera is an infectious disease that causes severe watery diarrhea, which can lead to dehydration and even death if untreated. उसमें death भी हो चुकी है अगर properly treat नहीं किया है तो. It is caused by eating food or drinking water contamination with a bacterium called Vibrio cholerae. It caused due to this Vibrio cholerae, this is a bacteria. By the contaminated food, by contaminated water, this disease get spread from one person to another. Back history में पूरे गांव जो है इसमें इन्फेक्ट हुए हैं. कम्युनिकेबल डिसीज है एंड वी कॉल इट एज जैसे आज कोरोना जो है सब तरफ फैला हुआ है, पेंडेमिक हुआ है. कुछ दौर इसका भी चला है जिसमें पूरे गांव जो है कॉलेरा से जो है पीड़ित हुए हैं. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पेंडेमिक डिसीज, दिस वन कॉलेरा. नेक्स्ट, दैट इज द डिप्थेरिया caused due to this Corynebacterium, this diphtheria, and in this bacteria is responsible for which ऐसे सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं केस ऑफ डिप्थेरिया डिसीज. और ऐसे टाइप के जो है सिम्टम्स पेशेंट के ऊपर दिखते हैं वो सब खुल जाता है यहाँ पे डिप्थेरिया बैक्टीरिया. It is a serious bacterial infection that affects the mucous membrane of the throat and the nose. The mucous membrane of the throat and the nose get completely infected by this bacteria और अंदर जो है पूरा whitish जो है पोर्शन हमको दिखता है. It is spread easily from one person to another. This disease can be prevented through the use of the vaccines are there. उससे ये बीमारी जो है काफी हद तक जो है हमने कंट्रोल की है. Next disease is there, that is a tetanus. It is caused due to that bacteria. We call it as a Clostridium tetani. This one is the bacteria due to which it is a disease takes place. और ये टिटेनस की इंजेक्शन जो है कुछ भी अगर जो कोई अगर आपको कुछ लग गया, रॉड वगैरह आपको लग गया तो उसमें टिटेनस का इंजेक्शन लिया जाता है. क्योंकि इस जो रॉड जो खराब हुआ होता है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होने की संभावनाएं होती है. जिसको जंग लगता है ऐसे टाइप का जो रॉड है उसमें ये बैक्टीरिया होने की संभावनाएं होती है. वो अगर आपको लग गया तो आपके ब्लड में ये बैक्टीरिया आने की संभावनाएं होती है. एंड इट लीड्स टू दिस डिसऑर्डर, वी कॉल इट एज ए टिटेनस. काफ़ी घातक ये जो है डिसऑर्डर है. तो ऐसे टिटेनस की इंजेक्शन हम उस पर लेते हैं. इफ़ दिस डिसीज टेक्स प्लेस अगर होती है तो पूरा ऐसा कवर होता है. ऐसे पूरी यानी पूरे जो हमारी बॉडी के जो है मसल्स गेट जो कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट रिलैक्स. टिटेनी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. पूरे बोन जो है पूरे ऐसे जो है अकड़ जाते हैं उसके अंदर. पूरी ऐसी तमाम ऐसे टाइप की बॉडी उसमें बनती है. तो उसको हम
वैक्सीन से भी जो है उसको चेक कर सकते हैं बीमारी को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक जॉ, is a serious infection caused by Clostridium, this one that is a tetany. This bacterium produces a toxin that affects the brain and nervous system, leading to stiffness in the muscles. Muscle get stiff and body will bend हो जाती है उसमें. If a Clostridium tetani spores are deposited in a wound, the neurotoxin interferes with the nerves that control muscles that are movement. All these are the symptoms of this disease. Then leprosy is there caused due to this Mycobacterium leprae. यह है Mycobacterium leprae due to which this leprosy takes place. और leprosy होने के बाद में ऐसे टाइप के जो है symptoms उसमें होते हैं. ये बैक्टीरिया ये जॉइंट जो है ये जॉइंट को ही अलग कर देते हैं. इससे ये जो उंगलियां जो है ये एक एक अलग होने लगती है, टूटने लगती है. ऐसे टाइप की ये डिसीज़ है. ऐसे टाइप की डिफॉर्मिटीज़ जो है हमारे बॉडी में के ऊपर दिखने लगती है. ये जो नाक का ये जो बोन है जिसमें कार्टिलेजिनस बोन, इट ऑल्सो गेट रिलीज. जो जॉइंट्स है वो यहाँ पे रिलीज ऐसे टाइप की जो है सिम्टम्स उसमें दिखने लगते हैं. लाइक दिस एक्सरे में या आपको दिख रहा है कोई डिफॉर्मिटीज ऐसे टाइप की दिखने लगती है. इनटू दिस डिसीज वी कॉल इट एज अ लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम दैट इज अ लेप्रे. This disease also known as Hansen disease is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae, that is a leprosy. The disease mainly affects the skin, the peripheral nerves, the mucosal surface of the upper respiratory tract and the eyes. Occur at all ages, ranges from early infancy to very old age. कोई भी एज में ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही एज में होता है. और ये लेप्रेसी जो है काफ़ी पहले जो है इससे लोग जो है इन्फेक्ट हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये बीमारी जो है ऑन द अर्थ हमको दिखती है. काफ़ी देश इससे प्रभावित हुए हैं. आज भी लेप्रेसी जो है इंडिया में है. लेप्रेसी के पेशेंट हमको दिखते हैं. आप हरिद्वार या आप त्रिवेणी संगम जो है इलाहाबाद, वहाँ अगर आप जाएंगे तो नदी के जो तट है या नदी का जो इलाका है वहाँ पे ये लेप्रेसी के पेशेंट आपको पूरे लाइन में बैठे हुए दिखते हैं. घर से उनको निकाल दिया गया है या जो भी है वो वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं. दीज आर लेप्रेसी और दीज ऑल डिसीजेस जो हमने देखे हैं, दीज ऑल डिसीजेस आर 100% क्यूरेबल डिसीज. सिर्फ डॉक्टर के पास हमको जाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ठीक हो जाते हैं हम. दिस ऑल आर द 100% वी कॉल इट एज ट्रीट होने वाली ये बीमारियाँ हैं. 100% क्यूरेबल डिसीज़ है. डॉक्टर के पास जाना है. हेपेटाइटिस बी की जैसी बीमारी नहीं है या उसमें कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जेनाइटल वार्ट वैसे टाइप की ये डिसीज़ नहीं है जिसके ऊपर आज तक कोई इलाज नहीं निकला है. ऐसे टाइप की ये बीमारी नहीं है. दिस ऑल डिसीजेज जो हमने देखी है बैक्टीरियल डिसीजेज ऑल आर द क्यूरेबल डिसीज़. लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको पहले लेनी है. डॉक्टर के पास जल्दी जाना है. तो जो भी टेस्ट है सब जल्दी करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमको लेना है. Like this diseases are there. ये है deformities. Then acute and chronic diseases are there. ये acute diseases है asthma attack, broken bone, bronchitis, burn, common cold, flu, heart attack. Then this one that is a pneumonia, heart attack, then respiratory infections, strep throat, cold, burn, breaking of bone, typhoid, jaundice, cholera, like this. And chronic diseases are these Alzheimer disease, arthritis. Then we call it as a depression, diabetes, then heart diseases, high blood pressure, high cholesterol, obesity, osteoporosis, stroke, diabetes, arthritis, cancer, tuberculosis. These all are the that we call it as a chronic disorders. Okay. Then dear viewers, इसके बाद में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर जिसमें हम वायरल इन्फेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. जितने भी वायरल डिसीजेस है उसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे. उसी वीडियो में हेलमिंथ जो डिसीज़ है वर्म से होने वाली डिसीज़ या प्रोटोजोन्स जो है उससे होने वाली जो डिसीजेस है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. और उसके बाद तीसरा वीडियो जो बनेगा उसमें ओवरऑल ये जो बीमारियां है इसके ऊपर उसको कैसे प्रिवेंट करना है, फिर उसके बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसी होती है उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे.